Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous videos, we have covered the most important questions plus previous year questions plus solutions of CBSE study material of session 1 and 2 of unit 3, that is database management system. I hope you have watched those videos also. If not, just visit the channel and check out the playlist of database management system. Plus, I will provide you the link of these two videos in the description of this video also. And in this video, we will discuss the most important questions, previous year questions, plus the solutions of CBSE study material of session 3, that is performing operations on table. I hope now you are ready to learn something new. But video start करने से पहले, if you are new to my channel and not subscribed it yet, so please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without any delay, let's start our today's video. So now, let's start with the fill in the blanks first of all. These fill in the blanks are from your CBSE study material. The first one is the types of languages used for creating and manipulating the data in the database are, see basically we are having three types of languages, DDL, DML and one more is there, that is DCL. But in your curriculum we are having of two types, that is DDL and DML. If I want to create the database, create the table, उसके structure में changes करने हैं, तो उसके लिए जो मेरे पास language है that is DDL, Data Definition Language. And if I want to do the updations in the already created table, rows insert करनी है, values delete करनी है और update करनी है, तो फिर उसके लिए मेरे पास कौन सी command है बेटा? DML, that is Data Manipulation Language. A dash is a standard for commands that define the different structures in a database. अभी बताया, जहाँ पर हम table का या database का structure create कर रहे हैं, जहाँ पर structure की बात हो जाएगी, तो that means आपकी कौन सी command है? DDL. A dash is a language that enables users to access and manipulate the data in a database. Manipulate करने की बात आ जाए तो DML, that means Data Manipulation Language. A dash is a part of DML involving information retrieval only. कि अगर मुझे information को retrieve करना हो, information को fetch करना हो, extract करना हो, तो DML में वो किसका part है बेटा? Query. Query का मतलब ही क्या होता है? मुझे complete table given है, according to my requirement, I am fetching the data from my table. Just for an example, आपका मेरे पास class 10 का records है 50 students का, right? अब कुछ students मेरे पास marks above 90 हैं, कुछ 80 to 90 की range में है, कुछ 70 to 80 के range में है. तो what I want to display the names of only those students who have secured marks above 90. तो ये मैंने वहां पर क्या अप्लाई कर दी बेटा? Query. तो it is a part of DML, जिसमें मैं अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर, राइट? अब पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज SQL. जो आपका SQL है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये आपका किस लिए यूज होता है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए. डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस. डेटाबेस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में सारी चीज हो जाएंगी, फॉर्म भी बन जाएगा, रिपोर्ट भी बन जाएगी, क्वेरी भी लग जाएगी. पर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सब किस पर डिपेंड करता है? टेबल पर. सबसे पहले मेरे पास डेटाबेस के अंदर क्या होनी चाहिए? टेबल. अगर टेबल नहीं होगी तो मैं फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकती, मैं क्वेरी नहीं लगा सकती, मैं रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकती. तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है दैट इज टेबल्स. There are dash types of relationships in a table. We are having three types of relationship, that is one to one, one to many and many to many. Next है बेटा full form, that is SQL stands for Structured Query Language. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. See, in this session, total we will cover approx 5-6 questions are there. Let me check this again. Yes, total 6 questions are there. See, the questions which are highlighted in this color, these are from your CBSE study material. जो questions highlight नहीं किए हैं, that are either from past year papers or important questions. But जो highlight किए हैं, these are from your CBSE study material. So now let's start with our first question. What is the file extension for databases created using OpenOffice Base?
एक्सटेंशंस पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बेटा, मेरे पास फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग फोन पर सॉन्ग सुनते हो, इमेजेस देखते हो, तो इमेजेस के पीछे मेरे पास .jpeg लगा होता है, राइट, या .gif इमेजेस होती हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं, मेरे पास mp3 फाइल है, व्हाट डज दिस मीन? ऑडियो फाइल। अगर मैं बात करूं mp4 फाइल की, दैट मीन्स वीडियो फाइल्स। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन मुझे पता लगता है कि मेरी फाइल किस टाइप की है, इमेज है, डॉक्स फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है। तो ये मुझे कौन बताता है बेटा? मेरी फाइल की एक्सटेंशन। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दूं फाइल 1, क्या आप बता सकते हो ये मुझे किस टाइप की फाइल है? नहीं बता सकते कि इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, डॉक्स फाइल है, पीडीएफ फाइल है, किस टाइप की फाइल है। बट अगर मैं लिख दूं फाइल 1 डॉट पीडीएफ, नाउ यू कैन इजीली टेल मी कि दिस इज माय पीडीएफ फाइल, राइट। तो ऐसी एक्सटेंशन आपको पता लग गया क्या होता है। तो हमारे पास जो ओपन ऑफिस बेस है उसकी एक्सटेंशन क्या बेटा? .odb, राइट, ओपन ऑफिस डेटाबेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 3 फाइल फॉर्मेट्स दैट कैन बी मैनेज यूजिंग ओपन ऑफिस बेस। जो हमारा ओपन ऑफिस बेस है उसमें जो 3 टाइप के फाइल फॉर्मेट्स है वो एक्सप्लेन करने हैं आपने। फर्स्ट वन इज बेटा .odt। दिस फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड बाय ओपन ऑफिस राइटर। जो आपका एमएस वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, सेम मेरे पास उसकी करस्पॉन्डिंग कौन सा है बेटा? ओपन ऑफिस राइटर। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हो, और दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्स एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा .ods। ods मीन्स ओपन ऑफिस कैल्क, जिसमें आप अपना स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, अपना हम लोग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट, काफी सारा काम होता है एक्सेल में भी। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है बेटा? .ods ओपन ऑफिस कैल्क के लिए। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास .odp। दिस फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड बाय ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस। अगर मुझे प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने उसके लिए मेरे पास पावर पॉइंट में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ पर हम .odp एक्सटेंशन उसकी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस। अभी ये फिलिप्स में भी था, कितने टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं बेटा? 3 टाइप्स की, 1 to 1, 1 to many और many to 1 और many to many, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जहां पर मेरे पास 1 वर्ड आ रहा है, ठीक है, जहां पर मेरे पास कौन सा वर्ड आ रहा है बेटा? 1, तो दैट मीन्स वहां पर हमारी किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है? प्राइमरी की से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। तो अगर मैं बात करूं 1 to 1, तो दैट मीन्स दोनों टेबल में कितनी प्राइमरी की होंगी? एक ही प्राइमरी की होगी। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। दोनों टेबल्स में मेरे पास क्या आने चाहिए? प्राइमरी की कॉलम्स। नेक्स्ट है बेटा 1 to many या फिर many to 1। 1 to many, एक से काफी सारों पर जा रहा है वो, या फिर many to 1, राइट। तो 1 to many, 1 जहां पर आया मैंने क्या बताया? क्या लिखोगे? प्राइमरी की। तो इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल 1 to many आ रहा है या फिर many to 1 है, तो 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो दैट मीन्स दोनों टेबल में से किसी एक टेबल में मेरे पास क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की। In this relationship, one of the table must have a primary key column. It signifies that one column of primary key table is associated with all the columns of associated table. Associated table means जो second table की बात हो रही है, 1 to many. ऐसे अगर मैं many to 1 की बात करूं तो multiple values जो होंगी columns की वो एक को signify करेंगी, right? नेक्स्ट है बेटा मेरे पास many to many relationship। अब one word कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो that means हो सकता है मेरे पास दोनों टेबल में कोई भी प्राइमरी की ना हो। तो इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम। इट सिग्निफाइज दैट ऑल कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। मींस इस तरीके से बन जाएंगे कुछ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज है और ये सेकेंड टेबल की है, तो ये हर एक से हो जाएगा, ये हर एक से, इस तरीके से, राइट। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा? मेनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। सॉर्टिंग मीन्स किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करना, डेटा अरेंज करना। तो सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपकी जो सॉर्टिंग है वो कितने पॉसिबल मेथड्स हो गए? इसमें 2 मेथड्स, दैट इज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन
डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्सप्लेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आपका कब यूज होगा? अगर मेरे पास दो टेबल्स हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो में से मेरा प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर नहीं समझा है बेटा, डू चेक आउट दैट वीडियो, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन बता रखा है। प्लस जो आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसमें भी ये कंसेप्ट विद एग्जांपल अच्छे से बता रखा है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हेल्प से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, मींस कहीं पर मिसमैच नहीं होगा। और ये आपका तभी यूज होगा जब मेरे पास कितनी टेबल्स होंगी बेटा? दो टेबल्स। तो इसमें आपका क्या होता है बेटा, एक कॉलम मींस मेरा दोनों टेबल में सेम होगा, जो एक टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा वही मेरा वही कॉलम दूसरी टेबल में एज अ वो फॉरेन की वर्क करेगा। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास ये एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट नेम से टेबल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर 1 2 3, ये उसके नेम्स लिख दिए। यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया कॉलम स्ट्रीम कोड 101 101 102, राइट। एक मेरे पास स्ट्रीम नेम से भी टेबल है, इसमें मेरे पास स्ट्रीम कोड है और स्ट्रीम नेम है। स्ट्रीम कोड 101 102 103, ये सपोज हो गया नॉन मेड, ये मेडिकल, ये कॉमर्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे पास ये दोनों टेबल्स अटैच है, मैंने इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है। इस टेबल के लिए जो एस कोड कॉलम है दोनों टेबल में सेम है, ये मेरा एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। इस टेबल में आपका ये एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, मेरे को एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड और ऐड करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रीम कोड में 104। अब क्या मेरे पास स्ट्रीम कोड 104 है? नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपका ऐड नहीं होगा रिकॉर्ड। तो इसलिए मेरे पास ये क्या जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हैं और जो मेरा डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ रिलेशनशिप इन अ टेबल, व्हाट इज द नीड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, कि हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं, राइट। तो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, इसकी पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है कि हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं। It saves time as there is no need to enter the same data in separate table. अगर मेरे दो मीन्स मेरा कुछ डेटा ऐसा है दो सेपरेट टेबल्स में है, तो जरूरी नहीं है ना कि मैं सेम डेटा दोनों टेबल्स में एंटर करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज की बात करूं, मेरे को स्ट्रीम कोड की हेल्प से स्ट्रीम का नेम पता लग गया, तो मुझे अलग से यहाँ पर स्ट्रीम नेम का कॉलम ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं इन दोनों टेबल्स के बीच में क्या क्रिएट कर दूं, रिलेशनशिप। तो जो सेम डेटा है दोनों टेबल में वो मुझे एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट रिड्यूसेस डेटा एंट्री एरर्स। अब कई बार होता है कि मैं सेम डेटा एंटर कर रही हूँ तो कहीं पर एरर मिस्टेक हो सकती है, तो यह हमारा जो है, अगर मैं दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर दूं तो आपका जो डेटा एंट्री एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। और देखो बिल्कुल रिमूव नहीं लिखा, रिड्यूस हो जाता है, ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इट समराइजेस द डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स। जो आपकी सेकंड रिलेटेड टेबल है उसमें आपका डेटा समराइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीम टेबल की बात करूं, यहाँ पर तो मुझे स्कैटर दिख रहा है स्ट्रीम कोड 101 2 4 इस तरीके से, बट यहाँ पर जो है मेरे को एक समराइज्ड फॉर्म में दिख गया कि स्ट्रीम मेरे पास दो है, स्ट्रीम कोड 101 नॉन मेड एंड 102 दैट इज मेडिकल, राइट। सो आई होप इस सेशन के क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will discuss the question answers of next session, that is session number 4, retrieve data using query. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.